Good morning, everyone. Today we are studying chapter Theory of Demand. In my previous video, I have explained you what is demand and some determinants. Today we will continue with the determinants of individual demand and market demand. So let's start with it. So here, determinants of individual demand: price of a commodity, which can be denoted as PX; related good price, which can be written as PR, price of related goods; income of consumer denoted by Y; consumers taste and preferences denoted by T और T and P, दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हैं. E for expectation, it is written as E only. And now when we start about market demand, ये पांचों के पांचों तो हमारे मार्केट डिमांड में आते ही हैं, प्लस 3 more. One is price of a good, price of related goods, income of the consumer, consumer's taste and preferences and expectations. ये इंडिविजुअल वाले जो हैं ये तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिविजुअल वन, मार्केट में और क्या ऐड हो जाएंगे? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, विच विल बी डिनोटेड बाय YD. Another one is N. N means population size, number of consumers, population size we can also say. And third we can write S. S for season and climate. Right. Now we'll study all of these one by one. Now price of a commodity. When we talk about the price of a commodity and the demand of that particular commodity, what will happen? There is inverse relation. Price will increase, quantity demanded of that very commodity, X commodity, will decrease. Price will decrease and quantity demanded of that particular commodity will increase. There is inverse relationship. You can see the arrows are moving in opposite directions. There is inverse relationship between price of a commodity and demand of that particular commodity. You can understand it with the help of this curve. When prices was 10, a person buys 8 units. That means he was at this point. Prices rose to 20 rupees at this point. Person started buying 6 units. कम हो गई. Then again prices rise to 30. Person started buying 4 units. अब इसका opposite हम लोग ले लेते हैं. When price was rupees 40, that means at this point we can say now we bought 2 units. Prices falls to rupees 30. B point. Consumer start buying 4 units. When prices falls to rupees 20, consumer started buying 6 units. So likewise ये हमारा इस direction में चलता है. So this is the relationship between price and demand. That is, there is negative relation between price and demand. This is how price of a commodity affects the demand. So this was the first determinant of demand. The other one is related good price. Related goods are of two types: substitute goods and complementary goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of each other, which are completely replaceable. आप एक ही चीज़ को दोनों को यूज़ करो, दोनों में से यूज़ करो. लाइक कॉफ़ी और टी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, आप दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, राइट? तो these moves in the same direction. That means price of one commodity and quantity demanded of the other one. If I say X as T, if I use X as T and Y as coffee, तो जो प्राइस टी के अगर बढ़ेंगे, यू कैन सी दी एरो, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेज, अगर चाय महंगी हो जाती है तो डिमांड फॉर कॉफ़ी इंक्रीजेज. इफ प्राइस फॉर टी डिक्रीजेज, चाय सस्ती हो जाएगी, चाय के प्राइसेस कम हो गए तो क्या होगा? लोग कॉफ़ी छोड़ के, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोग चाय ज़्यादा पीना शुरू करेंगे. अभी आई हैव टेकन एक्स एज टी एंड वाई एज कॉफ़ी. हियर दे हैव टेकन एक्स एज कॉफ़ी एंड वाई एज टी. So you can look at here, if the prices of the substitute good like coffee increases, अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो Y की जो, मतलब चाय की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. You can understand this by a graph. You can see this. This graph is only of tea. हमें ग्राफ उसी का दिखाना है जिसकी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं. प्राइसेस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ टी. 30 रुपये की चाय थी, हम 60 यूनिट्स लेते थे, बट अब हम 90 यूनिट्स ले रहे हैं. क्या टी के प्राइसेस में कोई फ़र्क आया? नो, टी के प्राइसेस उतना ही हैं. बट ये फ़र्क क्यों आया? दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी. कॉफ़ी महंगी हो गई तो जो लोग पहले कॉफ़ी पीते थे वो भी चाय पे शिफ्ट हो गए. दैट मीन्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम DD टू D1 और D' यू कैन से फॉरवर्ड शिफ्ट. सो दिस इज डिमांड फॉर द टी हैज़ बीन इंक्रीज. कॉज क्या था इसका? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी. ये बैकग्राउंड में काम करेगा, इसको आपने शो नहीं करना यहाँ पे ग्राफ में. नो,
कॉफ़ी का प्राइस कहीं शो नहीं होगा, ये रीज़न है, कॉज है, उसका इफेक्ट जो है वो हम पूरा शो करेंगे, राइट। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो टुगेदर यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ ही यूज़ होते हैं, लाइक पेट्रोल एंड पेट्रोल कार। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ, इसके ये अकेला यूज़ नहीं हो सकता, ये भी अकेला यूज़ नहीं हो सकता। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो कार क्या होगी, कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सपोज एक्स वी हैव टेकन पेट्रोल, पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो डिमांड फॉर द कार इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं इन दोनों के एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मीन मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर द कार, व्हेन द प्राइस फॉल्स, प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। आप देखो फिगर बिल्कुल सेम है जो हमने पहले बनाई थी। पहले 3 लाख की हमारी गाड़ी थी, हम 30 गाड़ी निकालते थे। अब कार की डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया। अब 45 कार्स निकल रही हैं, ठीक है ना। तो डी डैश टी डैश, क्यों आया ये फॉरवर्ड शिफ्ट, कार की इंक्रीज हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड में किसने काम किया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस ने। हमें पेट्रोल को कहीं शो नहीं करना है, यहाँ भी देखो अपने हमने कार शो किया, यहाँ भी कार शो किया। वी डोंट हैव टू शो पेट्रोल, बट वी हैव टू राइट इट that due to the increase in the prices of petrol, demand for the car increases. Now difference between substitute good and complementary good, meaning क्या है, can be used in place of each other. complementary good used jointly, एक दूसरे के साथ यूज होते हैं अगर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए तो। Now relationship, there is direct relationship between एक की डिमांड एंड दूसरे का प्राइस, दैट मीन्स प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, और यू कैन से प्राइस ऑफ वाई और डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री में एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल यू कैन से कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी, राइट। और इधर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करें तो कार पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, टी एंड शुगर, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं, राइट। नाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, इनकम कैसे अफेक्ट करेगी, देखो हमें पता है व्हेन द इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डेफिनेटली द डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिमांड विल ऑल्सो इधर इंक्रीज और डिक्रीज। बट नाउ हाउ, ये भी दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स आर द लो क्वालिटी गुड्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड, आप बहुत अच्छे से यहाँ समझ पाएंगे। एक डिफरेंस बताते हैं आपको, जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, दैट मीन्स हमारी इनकम बढ़ी, हमने इसकी डिमांड बढ़ा दी, ये है नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड क्या है, लो क्वालिटी गुड। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लो क्वालिटी गुड्स कम खरीदते हैं, हम हाई क्वालिटी गुड पे चले जाते हैं, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। So we can see that here, you can see the arrows here, they are moving in the same direction, positive relation between income increases, demand increases. Here negative relation, income increases, demand decreases, income decreases, income कम हो जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे तो हम लो क्वालिटी गुड्स खरीदेंगे, राइट। अब इसको तुम इससे समझो, इफ़ वी टॉक अबाउट द ओल्ड कार एंड द न्यू कार इज अ नॉर्मल गुड, ओल्ड कार इज लो क्वालिटी गुड। ओल्ड कार में ऑब्वियसली लो क्वालिटी हो गई। तो अब डिफरेंस देखो, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, व्हाट विल आई डू, आई विल बाय द ओल्ड कार और द न्यू कार, डेफिनेटली द न्यू कार। So for me, the new car is the normal good and old car is the low quality good, inferior good, right? So here you can see that if my income increases, here I am showing only one case, in increase in income. If income increases, the demand for new car will also increase from DD to D1, and the demand for the old car विल डिक्रीज, क्योंकि अब हम पुरानी कार क्यों लेंगे जब हमारे पास इनकम बढ़ गई, हमारे पास पैसे हैं, हम पुरानी कार क्यों लेंगे, है ना। पुरानी कार तो वो लेगा जिसकी इनकम कम है। तो यू कैन सी दैट हियर इट इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड साइड, बैकवर्ड, एंड इन इंक्रीज इन डिमांड वी कैन सी दैट इट इज शिफ्टिंग फॉरवर्ड और राइटवर्ड, यू कैन से दैट। सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द नॉर्मल गुड और inferior good. Now consumers taste and preferences. In this we used to talk about favorable and unfavorable. So if the consumer are having the taste and preferences favorable to the commodity, the demand of that commodity will definitely rise. And if the taste and preferences of the consumer are unfavorable towards that commodity, the demand will
डिक्रीज। तो कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, एडवर्टाइजिंग देख देख के ही मन कर जाता है कोई चीज़ लेने का, तो हमारे प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं। टीवी देख के हमारा मन का अच्छा ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लग रही है, हम ये ले लेते हैं। नाउ प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स मूव्स टूवर्ड्स सम अदर कमोडिटी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जो पहले लेते थे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट। नाउ ए फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड विल शिफ्ट फॉरवर्ड। यू कैन सी दैट सेम प्राइस पे पहले 6 बिकते थे, अब 9 बिक रहे हैं, बिकॉज एडवर्टाइजिंग हुआ, लोगों को पसंद आ गया, लोगों ने लेना शुरू कर दिया, हमने प्राइसेस पे कोई चेंज नहीं किया, राइट। एंड अनफेवरेबल टेस्ट अगर हो गया, उसके ऑपोजिट चले गए तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, राइट, डिक्रीज इन डिमांड, और यू कैन से दैट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो दिस इज you can look it directly that the demand curve of all the other factors are same. डिमांड कर्व जो बढ़ रही है या कम हो रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, यहाँ तक हमारे इंडिविजुअल वाले कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे तो वो क्या करेगा, वो अभी खरीद लेगा। लग रहा है कि आगे घर महंगा होने वाला है, हम आज ही घर खरीद लेते हैं, है ना, और लग रहा है कि आगे सस्ता हो जाएगा तो हम आज नहीं खरीदेंगे। तो दैट मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर हाई हैं, दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जो है राइज होने वाले हैं प्राइसेस, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल इंक्रीज दी डिमांड। है उतने का ही, लेकिन डिमांड 6 से 9 हो गई, राइट। एंड इफ़ वी गॉट टू नो दैट द फ्यूचर इन फ्यूचर द प्राइसेस आर गोइंग टू रिड्यूस, सपोज मैं गोल्ड की बात करती हूँ, अगर लग रहा है आगे सस्ता होने वाला तो मैं अभी नहीं खरीदूंगी, तो मैं अभी क्या करूँगी, डिमांड कम कर दूँगी उसकी, राइट। अब आगे सस्ता हो या ना हो बात की बात है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आगे सस्ता होगा तो मैं तभी लूँगी, मैं अभी नहीं लूँगी, अभी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अभी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपके सामने, आपने न्यूज़ में देखा, टीवी देखते देखते आपको पता चला कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं इस हफ्ते के एंड तक, राइट, वीकेंड में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो व्हाट यू विल डू, आप अभी गाड़ी ले जाओगे, उसकी टंकी फुल करा लोगे, आपको पेट्रोल पंप खाली नहीं मिलेंगे, राइट। तो आज ही आप पेट्रोल बढ़वा लेंगे। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाई यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं मार्केट वाले भी। मार्केट में वो सारे तो आ ही जाएंगे, साथ में ये भी आएंगे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। When you know that number of consumers in the market or population size increases, definitely the demand will be increasing. And if the population size is decreasing, the demand will definitely decrease. Increase in the number of consumers, demand will forward shift. सबकी डायग्राम एक है, 3 रुपये पे पहले 6 लेते थे, अब 9 ले रहे हैं, डी डैश टी डैश, बिल्कुल सेम डायग्राम है, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, बस रीज़न चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारी डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, इसको हम डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, दैट मीन्स जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लगे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इफ़ दे आर गेटिंग इक्वल इनकम, इक्वल इन द सेंस जितना उनका काम बनता है, जितनी उनकी इनकम बनती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उतना पैसा उन्हें मिल रहा है कि नहीं। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को भी उतना मिलेगा और पियोन को भी उतना मिलेगा, नो। इक्वल मीन्स द वर्क दे आर डूइंग, दे आर गेटिंग द मनी एज पर दैट वर्क और नॉट। इफ़ दे आर गेटिंग लेस, दैट मीन्स दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रिच और रिचर हो जाते हैं, पुअर और पुअर हो जाते हैं। रिच के पास पैसा बढ़ता है तो दे स्टार्ट सेविंग, तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। पुअर के पास पैसा है ही नहीं तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। व्हेन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज लेस डिमांड, व्हेन देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज मोर डिमांड। You can see the equal distribution, demand increases. Diagram is completely same curve. When unequal distribution is there, then there is backward shift in the demand curve. Demand is decreasing from 6 to 3. I hope it is clear to you. Now, the difference between the movement along a demand curve and shift in demand curve we'll be doing in my next video. So till here, please go through it. If you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.